اب جناب ذرا اس کو دیکھیے اور مجھے بتائیے یہ کون ہے؟ گیس کیجئے، سوچئے یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ بندہ آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا یہ کون ہے، اور آپ کو میں حیران کرنے والا ہوں جن کو نہیں پتا، لیکن اپنے ذہن میں تھوڑا سا سوچ کے بتائیے کہ کون ہو سکتا ہے یہ آدمی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز پاکستان کے میڈیا میں اس وقت سابق ISI کے DG اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو ملٹری تحویل میں لے لیا گیا اور کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اس سے پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کون فائدہ اٹھائے گا اس کا، کس کو نقصان ہوگا، اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اور اگر کچھ لوگ سیاسی باتیں سن کر تھوڑا سا بوریت محسوس کرنے لگے تو ویلاگ کے آخر میں آپ کو ایک ایسی چیز بھی دکھاؤں گا جسے دیکھ کر آپ لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ شدید ہنسی آئے گی آپ کو، لیکن جیسے ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چیز ہے کیا ایکچولی، تو آپ کو شدید غصہ بھی آنے لگے گا۔ تو انتظار کیجئے اس چیز کا، تب تک دیکھتے ہیں کہ ملک کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس بڑی گرفتاری سے یا کورٹ مارشل سے۔ پہلی وجہ ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ فیض حمید کو گرفتار کیا کیوں گیا، کس جرم میں گرفتار کیا گیا۔ ایک درخواست گزار نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دی کہ 2017 میں، آج سے 7 سال پہلے، جنرل فیض حمید نے ISI اور رینجر کے ذریعے میرے گھر اور میرے دفتر پر چھاپا مارا، میرے کاغذات اٹھا کے لے گئے، 400 تولے سونا اور کچھ نقدی بھی وہاں سے لے گئے، اور کچھ ISI کے ریٹائرڈ بریگیڈیئرز نے مجھے کال کر کے 4 کروڑ روپے مجھ سے مانگے اور ایک چینل کو سپانسر کرنے کا بھی کہا۔ یہ درخواست دی ہے معیز نامی ایک بندہ جو کہ ٹاپ سٹی کا مالک ہے، یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا مالک۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا اور ISPR کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر ہم نے یہ کارروائی کی۔ ISPR کے دوسرے پیراگراف میں بڑی اہم بات وہ یہ تھی کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ اب آرمی ایکٹ میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جن میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک خاص مدت تک کے لیے آپ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ بہرحال پاکستان کے اندر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایک سابق DG ISI کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، اسد درانی غالباً ان کا نام تھا۔ ان کا کورٹ مارشل ہوا، ان کو سزا بھی ہوئی، لیکن بعد میں سزا کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک نیول چیف تھے ایڈمرل منصور الحق صاحب، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ یہ بڑا اہم نام ہے، آگے چل کر کے میں اس کی آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ احتساب کا عمل طاقتوروں کے خلاف پاکستان کے اندر کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم نام ہے منصور الحق صاحب کا۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، سوشل میڈیا پر مختلف چہمگوئیاں نظر آ رہی ہیں۔ نون لیگیوں کا یہ بیانیہ ہے کہ عمران خان کے خلاف فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، عمران خان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے فیض حمید کی گرفتاری سے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی میں فیض حمید شامل تھے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کا ایک بیان آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے، جس میں وہ باقاعدہ کھلم کھلا یہ کہتی ہیں کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، انہیں سزا دی جانی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف برطانیہ سے بیٹھ کر کے نام لیا کرتے تھے فیض حمید اور جنرل باجوہ کا کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی، یہ جمہوریت کے اوپر شبخون مارتے ہیں، یہ سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہیں، یہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو عدالتوں کے ذریعے پریشرائز کر کے گھر بیچتے ہیں۔ یہ تمام الزامات اپنی جگہ پر۔ دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک بالکل متضاد بیان، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو تھے وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم عمران خان سے تنگ ہیں، لہٰذا آپ حکومت پہلے پنجاب میں لیں پھر وفاق میں لیں۔ تو یہ بھی ثبوت کے طور پہ عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ جوڑ توڑ کرتے تھے سیاست کی۔ ایک اور طبقہ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ فیض حمید صاحب عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ ایون کہ حامد میر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب PTI کی جو لیڈرشپ باہر ہے ان کو کالز کر کے بار بار یہ بتاتے تھے کہ فلاں کا نام لو، فلاں کے بارے میں بات کرو، ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور PTI کی جو لیڈرشپ تھی وہ ان سے کافی تنگ تھی۔ اور عمران خان صاحب کو بھی بتایا گیا کہ یہ شخص ہمیں تنگ کر رہا ہے، کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں نام لینے کا کہتا ہے، ایسا حامد میر صاحب کا کہنا ہے، ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے۔
बहरहाल कुछ लोगों को ये भी लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम अपडेट्स हुई पिछले दिनों, जैसे कमिश्नर रावलपिंडी वो अचानक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे सरेआम फांसी लगा दी जाए, मैंने इस मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है, बदतरीन धांधली की है इलेक्शंस के अंदर, पीटीआई को हराया है। इसमें फाइज ईसा चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का चीफ भी शामिल है, इलेक्शन कमिश्नर भी इसके अंदर शामिल है। तो लोगों को ये लगता है कि इसके पीछे भी फैज हमीद साहब थे। कुछ लोगों को ये भी लगता है, मैं सोशल मीडिया के हवाले से आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस वक्त बहस कर रहे हैं, कुछ राय इस बारे में जो है लोगों की, वो ये भी है कि कुछ जजेस के खतूत जो सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए कि किस तरह उनके घरों में कैमरे लगाए गए, फिर जजेस एस्टैब्लिशमेंट से मैनेज ना हो सकना, ये तमाम बातें एक अंदाजे के मुताबिक, लोगों की राय के मुताबिक, इनके पीछे कहीं ना कहीं फैज हमीद साहब का भी हाथ था। बहरहाल अभी तक जितना भी मैंने स्टडी किया हिस्ट्री को, जिन पावरफुल लोगों को, स्पेशली फोर्सेस से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई या कोर्ट मार्शल हुआ करप्शन की सजाओं में या जासूसी के इल्जाम में इस तरह की, लेकिन कभी किसी ऐसे शख्स को सजा नहीं दी गई जो अपनी हल्फ की पासदारी ना कर सका, जिसने अपने हल्फ के साथ धोखा किया। जो हल्फ वो उठाता है एक ओहदे पर जाने से पहले, उसके खिलाफ लोगों ने सरेआम हल्फ तोड़ा। इस मुल्क की आईनी और जमहूरी हुकूमतों को घर बेच करके इस मुल्क पर सालों काबिज रहे, दहाइयों काबिज रहे, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोर्ट मार्शल या किसी किस्म की कार्रवाई आज तक नहीं की गई। बहरहाल ये बड़ी खुशाइन बात है। अगर इदारे को लगता है कि उसे अपनी साख को लोगों के अंदर बेहतर बनाना चाहिए, तो बड़े ओहदों पर बैठे हुए ऐसे लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को भी गवाहों के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का बयान, मौलाना फजल रहमान का बयान, जो आपने सुना कि मौलाना फजल रहमान खुद ये कहते हैं कि जनरल फैज और जनरल बाजवा ने हम सब पार्टी वालों को बुलाया और बिठा करके कहा कि हम हुकूमत को घर भेजने लगे हैं, आप तैयारी करें। तो जमहूरियत के ऊपर शब खून मारना, साजिशें करके हुकूमतों को गिराना, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। इसके ऊपर भी मुकदमे चलने चाहिए और इनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल ताकतवरों के खिलाफ पाकिस्तान के एहतसाब का निज़ाम कैसे काम करता है, इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एडमिरल मंसूर अल हक ये चीफ थे पाकिस्तान नेवी के 1994 से लेकर के 1997 तक। इनके ऊपर इल्जाम था कि ये एक पूरा जहाज खा गए, यानी कि दिफाई सामान की खरीदो फरोख्त में इन्होंने गालबन 300 अरब रुपए की करप्शन कर ली। इनको नौकरी से हटा करके इनके खिलाफ केस चलाया गया। इसी दौरान 1998 में ये भागकर अमेरिका आ गए। अब ये कैसे भागे इस मुल्क से जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती हमारी इंटेलिजेंस की मर्जी के बगैर, ये भागकर अमेरिका कैसे आ गए, ये बड़ी अहम बात थी। बहरहाल ये अमेरिका आए तो उसके बाद पाकिस्तान में इनके ऊपर केसेस चलते रहे, यहाँ पे ये बैठे रहे, मौज मस्ती करते रहे। इतने में जनाब मुशर्रफ साहब आ गए पाकिस्तान में, फिर उन्होंने नैब बनाई तो केस नैब को ट्रांसफर हो गए। बदकिस्मती समझे एडमिरल साहब की कि अमेरिका में कुछ कवानीन ऐसे बनाए गए जिनके मुताबिक किसी भी मुल्क से अगर कोई भगोड़ा आएगा इस मुल्क में करप्शन करके, चाहे वो सियासतदान है, बैरोक्रेट है, कोई भी है, तो उसको अमेरिका में पनाह नहीं मिलेगी, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, केस चलाया जाएगा। तो बदकिस्मती से एडमिरल साहब को फड़ लिया जनाब अमेरिका में। वो टैक्सेस में रहते थे, पुलिस आई गिरफ्तार करके ले गई। वो मल्टी कलर की डांगरी उनको पहनाई, हथकड़ी लगाकर जेल में फेंक दिया। जो यहाँ पे इंसाफ का कानून है, जैसे सब कैदी हैं वैसे आप भी कैदी हो, बड़े अफसर हो गए तो अपने घर हो गए, तो अदालत लेकर जाया जाता था उनको, तो हथकड़ी पहनाई जाती थी उनको। तो जनाब कुछ ही दिन में ना एडमिरल साहब जो है वो तंग आ गए कि यार हम तो यहाँ पे फंस गए, बुरी तरह फंस गए। जज साहब को उन्होंने दरखास्त दे दी कि भाई मैंने पैसा खाया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं वहां जाकर के केस लड़ूंगा अपने खिलाफ, मुझे उस मुल्क पे भरोसा है, मुझे वहां भेज दें आप। तो जज साहब ने कहा ठीक है, मान रहे हो तुमने करप्शन किया तो जाओ अपने मुल्क में केस लड़ो। उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जज साहब ने और हथकड़ी लगा करके जहाज की सीट के साथ उनकी हथकड़ी बांध कर पाकिस्तान उनको रवाना कर दी। अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान की फिजाई हदूद में जहाज पहुंचा तो साहब की हथकड़ी खुल गई। अब साहब जब जहाज से नीचे आए तो साबिक नेवल चीफ हैं जनाब, वहां पे नैब के पुलिस के अफसरान ने उनको सैल्यूट करना शुरू कर दिया। नेवी की एक गाड़ी में उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया और सहाला के एक रेस्ट हाउस में जा करके उनको
वैसे ही मस्करी के लिए चले ये आपका जेल है, एक रेस्ट हाउस, सब जेल बना दिया गया उसको। वहां पर उनको एक खानसामा भी दिया गया, घर वालों को, फैमिली वालों को मिलने की इजाजत थी, आते बैठते गपशप होती वहीं पे, मतलब घर को ही एक जेल समझ लें। खानसामा खाना वाना ही पकाता था, खाते थे, मर्जी का तितर बटेर वहां पे पाड़ते थे। जनाब आली केस चलता रहा तो जनाब एडमिरल साहब अदालत नहीं जाते थे जज साहब के सामने, बल्कि अदालत रेस्ट हाउस में लगती थी। तफ्तीशी आकर के वहां तफ्तीश करता था, साहब जी आपने ये जुर्म क्यों किया, तो साहब जी बताते थे यूं किया। बहरहाल उसके बाद नैब के साथ प्ली बार्गेनिंग करके बात यहां पर मुकी कि जनाब जो लूटा हुआ माल है उसमें से 25% सरकार को देंगे, बाकी नहीं देंगे, अपनी मेहनत से लूटा है। तो उस वक्त फिर रियासत पाकिस्तान ने उनको 25% लेकर 75% साथ ले जाने की शर्त पर माफ कर दिया। आज वो एडमिरल साहब, नेवल चीफ साहब पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं, याशी करते हैं, प्रोटोकॉल भी इंजॉय करते हैं साबिक नेवल चीफ का। तो ये पाकिस्तान के अंदर हाल है ताकतवरों के एहतिसाब का। तो अगर आपने सही मानों में एहतिसाब करना है तो आज पाकिस्तानियों की हालत कुछ यूं है कि वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, इन तमाम बयानात को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो नून लीग के, मौलाना फजल रहमान के, ख्वाजा आसिफ के हैं, मैं तो यूं कहूंगा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आपने सुनी होगी उनकी बेगम के साथ बातचीत, उनकी ऑडियो लीक्स, उनकी बेगम के अपने मुलाजिम के साथ कन्वर्सेशन। इमरान खान जिसके अगर बात करते थे उनके घरों में डिवाइसेस लगाई गई थी। तो उस वक्त आईएसआई का चीफ कौन था? फैज हमीद था। तो कौन कर रहा था इमरान खान की ये सारी रिकॉर्डिंग्स? तो बहुत सारे शवाहिद आपके सामने ऐसे भी नजर आएंगे आपको। आज हामिद मीर साहब को आप अगर सुनेंगे तो वो ये बात करते हैं कि इधर से इमरान खान को कह रहे थे मैं आपका बंदा हूँ, उधर से शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातों के लिए वो तांते बांध रहे थे आर्मी चीफ बनने के लिए। उन्होंने बरतानिया तक अपने बंदे भेजे कि शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से कहीं मुलाकात हो जाए और फिर मुझे आर्मी चीफ बनाया जाए। तो आज पीटीआई का हो, नून लीग का हो, कोई भी हो, आज सारे पाकिस्तानी इस बात पर खुश हैं कि एहतसाब होना चाहिए ऐसे लोगों का जो सियासत में मुदाखलत करते हैं, अपने रोल से 2 कदम आगे बढ़ करके अपने हल्फ को तोड़ते हैं, लेकिन उस एहतसाब को शफाफ और अवाम की आंखों के सामने कीजिएगा। वो तमाम जराइम लोगों को आकर के बताइएगा। इससे आपकी साख बेहतर होगी, इससे इंसाफ के निज़ाम पर लोगों का थोड़ा सा यकीन बढ़ेगा। लेकिन अगर हमेशा की तरह यूं ही हुआ कि ताकतवर हमेशा चुंगल से निकल गया तो फिर मेरे ख्याल में ये वही जो राय मैंने आपको शुरू में बताई कुछ लोगों की, जो लोगों को लगता है कि वक्ती सियासी फायदा हासिल करने के लिए या पीटीआई के खिलाफ या किसी एक ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ये अमल किया गया है। बहरहाल इसके मजीद मुहर्रकात बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगे, गाए बगाए आपके साथ शामिल करता रहूंगा। अब जनाब जरा इसको देखिए और मुझे बताइए ये कौन है। गेस कीजिए, सोचिए ये कौन हो सकता है, ये बंदा आपको क्या लगता है कौन है? मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा ये कौन है, और आपको मैं हैरान करने वाला हूं जिनको नहीं पता। लेकिन अपने जहन में थोड़ा सा सोच के बताइए कि कौन हो सकता है ये आदमी। जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का नो मुंतखब सिंध का नायब सदर है। हलीम आदिल शेख साहब ने इसको सिंध का नायब सदर बना दिया है। ये आदमी, अब देखो यार, वो कहते हैं ना, खड़ी फसल हो खेत में और मालक मौजूद ना हो और सुअर बढ़ जाएं उस खेत में तो फसल को तबाह करके रख देते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल भी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा है कि मालिक जिसने 22 साल मेहनत करके जमात बनाई थी वो आज जेल के अंदर कैद है और इनकी पीछे सिद्धि लगी हुई है, मौजें लगी हुई है। ये आदमी कभी अमेरिका, कभी थाईलैंड, कभी हांगकांग, कभी बैंकॉक, कभी मसाज करा रहा है, कभी डांस कर रहा है। अमीर ज्यादा है, कोई पैसे हैं इसके पास बहुत सारे। अब सीधी सीधी बात है भाई, पूरे कराची में कोई मिला नहीं था नायब सदर की सीट के लिए, या इसकी टिकटॉक प्रोफाइल देख करके यूं लगा कि बहुत पैसे हैं इसके पास, हैं, बना दिया नायब सदर। भैंस की आंख, मस्खरी कर रहे हो क्या? ये क्या था भाई अलीम आदिल साहब, ये क्या था? ट्विटर पे आके ये बंदा अलीम आदिल जस्टिफिकेशन दे रहा है
जब लोगों ने तनकीद की इसके ऊपर, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, जस्टिफाई कर रहे हैं कि कहता है नहीं भाई इसका पूरा खानदान पीपल पार्टी का, लेकिन ये अकेला आदमी बीच में है पीटीआई का, सो ये डिजर्व करता है, पूरे कराची में ये डिजर्व करता है नायब सदर बनना। ये आपने वो जुर्म किया है ना, यकीन जानिए ये आपके गले से इस जुर्म का जो हार है ना कभी भी नहीं उतरने वाला। अली मादल शेख साहब, ये आपने जाने अनजाने में, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप इसको जानते ही नहीं थे ये कौन है, आपने इसको नायब सदर बना दिया, चाहे आपने जिसने भी बनाया, लेकिन ये फैसला बुरी तरह आपके गले पड़ने वाला, याद रखिएगा इस बात को। ये एक ऐसा आदमी यार जिसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल देखो, जिसके व्यूज देखो, जिसका लाइफस्टाइल देखो, इस मुल्क में जहां लोगों ने इस माफिया के खिलाफ लड़ना है, हकीकी आजादी की जंग लड़नी है, पिछले 2 साल से लड़ते हुए हजारों जेलों को चले गए, कितने मर गए, लीडर आज जेल के अंदर है, उस जंग को, उस काफिले को, उस लश्कर को लीड करने के लिए ये लोग हैं, ऐसे लोग आकर के लीड करेंगे, ये नायब सदर बनेगा। ये क्या जोक किया यार आपने, मतलब इतनी सेंस, इतना दिमाग नहीं। इस फैसले को जितनी जल्दी हो सकता है रिवर्स किया, और ये रिवर्स होगा। एक ऐसा आदमी जिसकी काबिलियत ही नहीं है भाई, एक सियासी लीडर ऐसा हो सकता है, आप सोच सकते हैं एक सियासी लीडर इस तरह का होगा। अब जनाब आली, ये जो आपसे गलती हुई है, जो आपने की है, ये आपके गले पड़ने वाली है। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। देखते रहिएगा अली व्लॉग चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।